Good morning, students. Now, today we are going to do chapter 12th, that is environmental and sustainable development. So, here this chapter basically deals with the environment and how we are going to sustain that environment for our future generations. मीन्स यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी एनवायरनमेंट बचा रहे, वो लोग भी, आने वाले लोग जो हैं, हमारी जो अपकमिंग जनरेशन्स रहेंगी, वो भी एनवायरनमेंट को जैसे हमने एंजॉय किया, लाइक वी यूज द एयर, सनलाइट, वाटर रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोल, सो दे शुड बी ऑल्सो इन द कंडीशन टू यूज ऑल दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स. सो इसको सस्टेन करना जरूरी है एनवायरनमेंट को. ऐसा नहीं होना चाहिए हम इंडस्ट्रीज और इसमें इतना ज्यादा खो जाए बेसिकली दैट वी जस्ट कंप्लीटली डू द लुकआउट ऑफ अंडरलुक कर दें इन सब चीज़ों को जो कि इंपॉर्टेंट है, लाइक एनवायरनमेंट में, लाइक वाटर रिसोर्सेज, पेट्रोल वगैरह. तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ना है. तो बेसिकली चैप्टर इन्हीं बातों पे, एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेन किया जा सकता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है. नाउ कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, जैसे हम सब जानते हैं, बेसिकली इट्स आर दोज कंडीशन व्हिच अफेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ. All this condition of the environment definitely impact this human life. Of course, it is the sum total of the surrounding and totality of the resources that affect our existence and the quality of our life. So it depends on the environment. If you are going to do or ruin the environment, what is going to happen definitely is, because if you ruin the environment, definitely it will be a negative kind of impact upon your life. So it is a kind of thing which should not be done. So according to this Environment Protection Act, which has been passed as per law in 1986, basically this environmental includes this air, water, sunlight, and all this kind of things are in interrelationship which exist among the water, air, land, and human beings, because we are directly connected somehow with all these kind of things, all these plants, microorganism, and property. So basically there is a kind of relationship because we depend on such kind of elements of the nature which nature provides us, and we are simply alive because of the presence of such kind of element which are nothing but the just like a gift from the side of God for us. So basically we should try to take care of such kind of thing, and we should not damage the environment in order to satisfy our needs. Now, the above definition suggests that there are physical or abiotic and as well as biotic elements. So, biotic elements are like which are living in nature, like plants are there, aquatic animals are there. So, they are biotic, means living. And there are some abiotic also, like air, water, and all these kind of resources. This kind of resources are non-living. So, we depend on both of these. Now, the physical elements includes land, water, air, soil, climate. All these are abiotic nature, and all the other are with other resources which the nature has provided to us as a free gift, like trees are there. So trees are biotic element, but definitely it provides a lot, like it provides us wood. So that doesn't mean that we can cut the entire trees and we will make furniture of all those kind of wood. No, we must grow more and more trees also, because it takes years for a tree to grow, and if you cut the tree it will take you a few hours. So this should not be done. We should take care of the environment, of course. Then the third point here is living organism include all kind of living creature like plant, animal, which impact the human life. And definitely I was telling you about this thing only, that we depends a lot on this, all the kinds of plants and all the kind of animals. Somehow like milk comes from these animals. So they are also related to the environment. Plants also related. We eat vegetables, different types of vegetable. This also come from the environment. So we must take good care of the environment. So we're going to get good, and our health, our life will be lived in a very good way. Now, the significance of the function of the environment. What is the importance here of this environment? Environment offers the resources for the production. So whenever you say that production is going on in industry, so from where this all these resources or raw material comes from, कहाँ से आता है raw material? Basically mineral, wood, water, soil, ये सब लगता है. तो बेसिकली ये सब कौन प्रोवाइड करता है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. इट इज अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर फ्रॉम द साइड ऑफ गॉड. So these resources use input for the production. इसको input के रूप में लेते हैं, like we use all these kind of resources as a raw material in the companies. Now, in fact, production is simply the process of conversion of the natural resources into useful things. तो natural जो मिलता है हम उसको process करते हैं and we convert it into the some useful thing, like wood is converted into furniture. Now, after this, the second, environment क्या करता है? Environment sustains life. Environment includes sun, soil, water and air, which are essential ingredients of the subsistence of human life. हमारा जो जीवन, हम जिंदा है तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों की वजह से जिंदा है. सन, वाटर वगैरह, इनकी वजह से अगर ये नहीं होंगे तो हम भी जिंदा नहीं होंगे. तो इट इज हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस.
and like we had all depletion of this all this ozone layer and all, we are destroying the nature somehow. So because of these things our life is in danger. Now environment assimilates waste. So production and consumption activities generate waste. So this occurs mostly in the form of garbage. Where it does it go? Environment absorbs it. तो जो भी कचरा हम फेंकते हैं तो बेसिकली कहाँ जाता है? बेसिकली एनवायरनमेंट ही उसको सोख लेता है और उसको एक नुकसान पहुंचता है, लाइक स्मोक विच आर emitted from all these chimneys of the industries from what do you think where this smoke go? Into the environment. Okay, environment में ही जाता है सारा smoke. Now here, environment enhances quality of life. So surrounding include river, ocean, mountains, desert. Man enjoys this surrounding, add it to the quality of his life. तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि इनका प्रेजेंस हमको अच्छा करता है, हमको उसका एक एंजॉयमेंट लेते हैं इन चीजों का हम। तो ये सराउंडिंग भी हमारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि हम उसको एंजॉय करते हैं और ये हमारी क्वालिटी को ऐड करता है, हमारी लाइफ जीने की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। नाउ द टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? एक तो है पॉल्यूशन की। तो जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी एक प्रॉब्लम है, एंड देन प्रॉब्लम एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम जरूरत से ज्यादा ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और डिग्रेडेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे कि लैंड की अगर बात की जाए तो हम उसको ज्यादा इतना ज्यादा हम उस पर आर्टिफिशियल तरीकों से उसको ग्रो कर रहे हैं, उस पर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, फर्टिलाइजर से उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो नेचुरल कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली वी आर डूइंग डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड हियर विच इज अ नेचुरल रिसोर्स। सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम। सो व्हाट आर द काइंड ऑफ पॉल्यूशन? लाइक बेसिकली पॉल्यूशन क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज जो कि हम प्रोडक्शंस करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो इससे क्या होता है? प्योरिटी एयर वाटर की ये जो वेस्ट होता है हम उसको डंप कर देते हैं, कभी हवा में कभी पानी में। तो दिस इज अ इमर्जिंग चैलेंज एवरीवेयर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये पॉल्यूशन ज्यादातर कहाँ से होता है? इंडस्ट्रीज से होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ज्यादा होगा तो नेचर भी डिग्रेड करेगा फॉर श्योर। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सब यहाँ पर होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन हवा जो प्रदूषित हो जाती है उसको बोलते हैं बेसिकली। नाउ एयर कैरीज ऑक्सीजन लेवल, okay, which is an essential element of life. So pollution of air implies pollution of an essential element of life. Accordingly quality of life is impaired. Now because of this what happens? तो यहाँ पर अगर हमको फ्रेश एयर नहीं मिलती तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमको हमारी हेल्थ जो है वो इम्पैक्ट होगी बुरी तरह से। सो व्हाट कॉजेज द पॉल्यूशन ऑफ द एयर? सो एयर पॉल्यूशन occurs owing टू द प्रेजेंस ऑफ pollutants इन द एयर। तो जो भी इंडस्ट्री होती है तो वो क्या एमिट करती है? स्मोक्स वगैरह, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। सो ऑल दिस स्मोक विच गोइंग टू द एटमॉस्फेयर इट पॉल्यूट्स द एयर। ऑल दिस पॉल्यूटेंट्स लाइक फर्टिलाइजर्स जो कि खेत में यूज होते हैं, तो वो सब कहाँ जाता है? इसका सब असर एनवायरमेंट में होता है, हवा में होता है। तो दिस पॉल्यूटेंट्स में बी पॉइजनस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, carbon monoxide. This may be suspended particles such as dust, pollen, on smoke and other factor contributes to the air pollution. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जो भी एमिट होती है ये सब एटमॉस्फेयर में जाती है, हवा को गंदा करती है। नाउ द स्मोक emitted by the industries particularly are the coal as energy. So if you are using coal as energy, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो बेसिकली उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। नाउ पॉजेज गैसेस एमिटिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम द प्लास्टिक एंड लेदर इंडस्ट्री। ये जितने भी लेदर और केमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री दिखती है उससे पॉइजनस गैसेस एमिट होती है। देन एमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल विच हैज राइजन टू अ थ्रेटनिंग लेवल ओविंग टू द एक्सपोनेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो गए तो उससे भी गैसेस रिलीज होती हैं। तो वो जो कहाँ जाती है? वो भी हवा में जाती है जो कि पॉल्यूट करता है एनवायरमेंट को। बिकॉज इन द बिगनिंग द there was a condition when the people were having a very less number of motorcycles and four wheelers, but nowadays everybody in most of the houses you will find two wheelers. There are five or four two wheelers will be standing along with a four wheeler. Now water pollution. Water pollution क्या है? Like air, water is also a very essential part of the human life, and its pollution is very serious. So pollution of the water leads to the contamination of the water. Contamination यानी कि पानी का प्रदूषित हो जाना. The use of polluted contaminated water leads to diseases like diarrhea and hepatitis. तो पानी जो खराब पानी आप पीते हो तो आपसे कई बार पेट की बीमारी हो जाती है, लाइक डायरिया हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाते हैं। तो बेसिकली पानी की खराब होने की वजह से होती है। सो फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फैक्टर विच लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? लाइक पहला तो होता है इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जो कि डंप कर दिए जाते हैं, लाइक इनटू रिवर्स, पानी में, नदियों में बहा दिए जाते हैं। फिर डोमेस्टिक सीवरेज, जो गंदी नालियों का पानी रहता है वो भी रिवर्स में जाता है। दैट इज वाई द
water is getting polluted. Then agriculture runoff मतलब कि जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, जो फर्टिलाइजर्स छिड़कते हैं हम क्रॉप्स के ऊपर या फिर वेजिटेबल्स के ऊपर, तो वो भी कहीं ना कहीं जाके क्या होता है, पानी के साथ में मिलता है, लाइक ग्राउंड वाटर में जाता है। जब बारिश होती है तो वो सारे केमिकल्स कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ साइड चले जाते हैं, ग्राउंड लेवल में वाटर की तरफ, तो उससे भी हार्म होता है। सिमिलरली इन दिस टी पॉइंट, थर्मल पावर हाउसेस जो रहते हैं जहाँ पे एनर्जी बनती है, बेसिकली वो भी ऐश को, राख को डिस्चार्ज कर देते हैं, वाटर में छोड़ देते हैं, तो वो मिक्स हो जाती है पानी के साथ में। तो अगेन इट जस्ट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ, इट जस्ट हैम्पर्स द वाटर प्योरिटी, पानी की पूरी जो प्योरिटी रहती है वो खराब कर देता है। Okay, then noise pollution. Now this is also kind of serious pollution. Nowadays many people are suffering because of this disorder, hearing disorder. So noise pollution is the result of it. So mechanization has raised the level of efficiency, but it has equally raised the level of noise pollution. Now, noise pollution has recorded an exponential growth because millions of vehicles fitted with the loud horns, noise generating engines are plying on the roads. अब ये noise pollution क्या होता है, बेसिकली जो vehicles रहते हैं जिसमें बहुत सारे हॉर्न्स वगैरह उसका साउंड, प्लस जो engines उसमें लगे हैं गाड़ियों में उसका साउंड, लाइक बुलेट साउंड इज देयर विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइस। सो ये जो चीज़ें गाड़ियाँ उस तरह से बनाई जा रही है जो कि नॉइस क्रिएट करती हैं, और पीपल्स आर लाइकिंग ऑल दिस काइंड ऑफ गुड्स। नाउ एक्सेसिव नॉइस causes इरिटेशन एंड अननेसेसरी फैटिक टू द बॉडी एंड द माइंड। अब ये जो चीजें क्या करती है, आपको इरिटेट करती है, फैटिक लाती है, थकान लाती है बॉडी और माइंड पे, मतलब आपका जो दिमाग है और शरीर वो थक जाता है इसको सुन सुन के। तो ऐसा भी होता है, अकॉर्डिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ डेटरेट्स एंड एफिशिएंसी इज रिड्यूस, आपका एफिशिएंसी से काम करने का कम हो जाता है, इसलिए ट्रैफिक में आप काफी टाइम तक फंस जाते हो, और आप वहां से निकलते हो तो आप थकान महसूस करते हो, बेसिकली उस चीज की वजह से ही होता है। तो यू मे नीड द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। तो कहाँ से आता है नॉइज पोल्यूशन? तो साउंड प्रोड्यूस बाय मशीनरी यूज इन द इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री में जो मशीन यूज हो रही है उससे आवाज आती है, उसकी वजह से। देन कार्स ट्रक्स का साउंड, ट्रांसपोर्टेशन का। देन साउंड प्रोड्यूस बाय द मशीन इन कंस्ट्रक्शन वर्क, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है इससे होने वाला साउंड। तो जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, चीजों को यूज कर रहे हैं, तो इससे होने वाला नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, एंड इट्स इम्पैक्ट्स आवर साउंड माइंड एंड और आवर थिंकिंग एबिलिटीज, इस पे इफेक्ट करता है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा देता है कई बार। नाउ आफ्टर दिस एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ ज्यादा ही नेचुरल रिसोर्सेज को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यहाँ पे। सो क्या हो रहा है इसकी वजह से, साउंड एस्पेक्ट of the environment problem relate to the excessive exploitation of the natural resources for degradation of the resources. Natural resources refers to forest, mineral and soils. तो natural resources क्या होते हैं, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, तो इसको डिग्रेड कर रहे हैं हम, उसकी क्वालिटी को कम करे जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल कैपिटल। अभी जितने भी फॉरेस्ट हैं ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स मिलते हैं, सल्फर, मैंगनीज, ये सब मिनरल्स हैं विच यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ को डिग करते हैं, खोदते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो इसमें लगी हुई हैं, तो वो भी इस तरह की मशीनरी को यूज करेंगी और वहां से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगी। और नेचुरल रिसोर्सेज का क्या बोलते हैं हम, नेचुरल कैपिटल। कैपिटल से, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक तरह से पूंजी की तरह, इट इज जस्ट लाइक अ वेल्थ फॉर अस। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में बी नोटेड इन दिस रिगार्ड, इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ मैन नीड्स नेचुरल कैपिटल अलॉन्ग विथ फिजिकल कैपिटल। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको क्या चाहिए, नेचुरल कैपिटल, यानी सारे रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे अलॉन्ग विथ फिजिकल कैपिटल, दैट इज मशीनरी। सेकंड, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ फिजिकल कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल। मतलब जब प्रोडक्शन करोगे तो जिस तरह से कंपनी में फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीनरी घिसती है, डेप्रिशिएट होती है, आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, उसी तरह से नेचुरल कैपिटल भी डेप्रिशिएट होता है। जैसे कि नेचर है उसको भी आप हर्ट कर रहे हो, क्षति पहुंचा रहे हो, तो डेप्रिशिएट हो रहा है, इवन द nature is getting degraded. Now, the third point, often we make provision for the replacement of the physical capital. कौन सा प्रोविजन बनाते हैं, डेप्रिसिएशन बनाते हैं ताकि हम मशीन को रिप्लेस कर पाए, विच आर डेप्रिसिएशन। और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल इन टर्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, इट इज इग्नोर्ड और पुअरली एड्रेस। और जब डिग्रेडेशन होता है एनवायरमेंट का तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते, और कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी जीडीपी है उसको एक तरह से एडजस्ट करके देखते हैं कि जो भी नेचर को क्षति पहुंची, जो उसको हार्म हुआ है, उससे एडजस्ट करते हैं कई बार जीडीपी को। तो हम उसको चेक करते हैं उसको, जीडीपी को, कि कितना नुकसान पहुंचा है। तो ये चीज देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी वजह से इम्पैक्ट होके कितना नुकसान पहुंचा है हमारी ग्रोथ से जीडीपी को। देन डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काट देना।
तो बेसिकली जो यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत सारी ट्रीज हैं जो सालों में ग्रो हुए होंगे, उसको जाने कितने दिनों में कट करके यहाँ पे बैठ गए हैं। तो ये डिफॉरेस्टेशन है। अब उस डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है? जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हो या फिर रोड बनाने, हाईवेज बनाने, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कट द ट्रीज। सो डिफॉरेस्टेशन इज अ बोन एज इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ थिंग टू कंज्यूम। अभी ये बहुत एक प्लस पॉइंट की तरह है, बून की तरह है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हो। बट इट इज अ बेन व्हेन इट कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। बट ये बेन कब है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट कब है? जब ये आप उसको कट कर देते हो। दिस इज हाउ इट हैपेंस। Trees are felled to meet the growing demand for wood and other forest products by the industries. इंडस्ट्रीज को बहुत सारे वुड से प्रोडक्ट चाहिए, लाइक बार्क। तो इंडस्ट्री नीड द बार्क ऑफ द ट्रीज टू मेक द पेपर, तो पेपर इंडस्ट्री नीड बार्क ऑफ ट्रीज। वुड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, दैट पॉटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। So basically wood is also required by the furniture making company, and in so many construction field wood is used. So basically इसका कहाँ से आता है? प्रोवाइड होता है नेचर से, प्रोवाइड होता है फॉरेस्ट कट रहा है इसकी वजह से। Now excessive noise causes irritation and excess fatigue to the body and mind. Now this page, I think it's been repeated here. Okay, so that page was repeated twice here, so no problem, we'll continue. So second point is industrialization leads to urbanization. Urbanization induces deforestation. More and more forests are cleared for the development of the township. अब टाउनशिप यानी कि घर बनाने के लिए, सोसाइटीज बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है, और उसकी जगह वहाँ पे टाउनशिप बना दी जाती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा तो अर्बनाइजेशन भी होगा, शहरीकरण भी होगा। तो जब शहर आएंगे, बसेंगे लोग, तो ये इनको जगह चाहिए रहेगी, दे विल नीड सम स्पेस टू स्टे एंड मेक देयर हाउसेस। सो फॉर दैट डेफिनेटली मैनी ट्रीज एंड ऑल दिस forests are already been cut down. The industrialization apart requirement of the wood by the household as a fuel to also for the leads to deforestation. Now some of the household they uses wood as a fuel. खाना बनाने के लिए wood का इस्तेमाल करते हैं, तो वो fuel हो गया उनके लिए। तो इसकी वजह से भी जंगल कट जाते हैं या पेड़ कट जाते हैं। In India, explosive population size has contributed to the explosive demand of firewood. नाउ कंसिक्वेंटली ट्री फेलिंग आर हैपन टू बी अ रैपिड फेज। अब जिस फेज पे आप कट करो ट्रीज को, वो बहुत ज्यादा फायरवुड का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया हाउस होल्ड में। तो ये चीज की वजह से बहुत ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। लाइक गरीबों की बात की जाए, पुअर पीपल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस समहाउ, क्योंकि गरीबों के पास इतना पैसा नहीं रहता है, डोंट दे डोंट हैव इनफ मनी टू परचेस ऑल दिस काइंड ऑफ स्टोव और स्पेंड सम मनी ऑन दिस गैस सिलेंडर एंड ऑल। सो व्हाट दे विल डू, they will pick up or cut the tree and they will collect some wood and they will cook food at their homes. तो ये चीज हो रही है, वो खाना बनाएंगे उसी उसी से। तो गरीबी भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है नेचर के डिग्रेडेशन में। नाउ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट एट भाखड़ा नंगल डैम बना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट वाज देयर। सो दिस वाज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस कॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन। जब कोई प्रोजेक्ट रन करते हो, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे भी जब भाखड़ा नंगल डैम बना तो उसकी वजह से क्या हुआ? फॉरेस्ट को काट दिया गया। डिफॉरेस्टेशन इसकी वजह से भी होता है। इफ यू आर डूइंग डेवलपमेंट देन डेफिनेटली इट विल हैपन। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेड कैसे होती है? जैसे कि डिग्रेडेशन का मतलब कि जब लॉस हो जाता है सॉइल की फर्टिलिटी में, जो ग्रोइंग कैपेसिटी रहती है, विच इज द नेचुरल कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, द पावर ऑफ द सॉइल, इट इज कॉल्ड एज फर्टिलिटी, विच इज कैन बी said in the other words, this is nothing but a ability of the soil to grow something, fertility. अगर आप बहुत सारा उसको एक्सेसिव यूज करोगे, फर्टिलाइजर छिड़कोगे, तो उसका जो सॉइल रहता है वो कैसा होता है? खराब हो जाता है, उसमें डिग्रेडेशन हो जाता है। नाउ सॉइल इरोजन इज द फर्स्ट थिंग इन द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड। अब लैंड का डिग्रेडेशन में क्या होता है, सॉइल इरोजन में क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, वी टॉक ऑफ द सॉइल इरोजन। तो क्या होता है इन बाढ़ में? क्या होता है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जो कि बहुत ह्यूमस जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत फर्टाइल रहती है, वो बह जाती है। सो वी आर रेफरिंग टू द लॉस ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल, विच कंटेन्स मेजर न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स इस पे ही ग्रो करते हैं अच्छे से। तो अगर वही बह के चली गई तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज काइंड ऑफ थिंग, सॉइल इरोजन हो जाता है। तो बेसिकली अगर ट्रीज रहते हैं, तो ट्रीज क्या करते हैं? बाढ़ को, मतलब ये जो पानी बहता है वो होल्ड करके रखते हैं, उसको मट्टी को होल्ड करके रखते हैं। तो वो जो चीज़ है वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे। और अगर ट्रीज को काट दोगे तो वो भी इम्पैक्ट रहता है, कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन हो जाता है, बह के चली जाती है। सो इट इज गुड टू हैव ट्रीज एवरीवेयर। देन अल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ द सॉइल कॉल्ड बाय द वाटर लॉगिंग। जब पानी जम जाता है तो सॉइल कैसी हो जाती है? अल्कलाइन बन जाती है, सॉल्टी हो जाती है, और सैलिनिटी बढ़ बढ़ जाती है, जो कि
काफ़ी अच्छा नहीं रहता ग्रोथ वोथ के लिए, अच्छा नहीं रहता प्लांट्स की। द एक्सेसिव वाटर लॉग ऑन द टॉप सॉइल, इट टेंड्स टू सक अप द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूसेस फर्टिलिटी। अब जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, इसकी वजह से जो फर्टिलिटी रहती है सॉइल की, वो कम हो जाती है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स को वो खा जाती है, खत्म कर देती है। इन इंडिया नियरली 50% ऑफ द टोटल लैंड एरिया is exposed to the degradation of one type or the other. Some urgent steps taken relating to soil observation the need of the hour. Now this is just a conclusion. हमने सिर्फ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के बारे में देखा, लैंड यानी कि लैंड के बारे में देखा। Now what are the causes? कारण क्या है इसके? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है, क्या कारण है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज्यादा नीड बनेगी, ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, और लैंड हैज बीन रूथलेसली एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि रूथलेसली मतलब बेरहमी से यूज हुआ है एनवायरनमेंट में और उसको डिग्रेड कर दिया गया है। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारी नीड बढ़ती है, जिसके वजह से फॉरेस्ट वगैरह रहने के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनेंगी और वो सब कट हो जाएंगी। फॉरेस्ट कट होंगे तो इसकी वजह से नेचर को हर्ट होता है। देन सेकंड इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब पॉवर्टी क्या होती है, बेसिकली गरीबी। तो ये किसे रिस्पॉन्सिबल है नेचर को डिग्रेड करने के लिए? सो a large section of Indian population is absolutely poor. दे कट द ट्री फॉर द फ्यूल वुड, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली फ्यूल वुड को काटते हैं, उससे वो खाना कुक करते हैं। तो समहाउ जो पोवर्टी है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द environment. Third point is increasing urbanization. So when the peoples are getting urbanized, जब वो बस रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, तो it has caused the pressure on the housing and other civic amenities. It has resulted in the increased demand for the land and excessive exploitation of the other natural resources. जब शहरीकरण होता है तो पीपल्स को और ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा, तो जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन होगा तो डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन होगा नेचर का। देन द फोर्थ पॉइंट हियर इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर। तो जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें यूज होगी एग्रीकल्चर पे, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आज खेतों में अब जब प्रोडक्शन होता है तो यही सब चीज़ें यूज होती है, इससे एनवायरनमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। लाइक व्हेन यू यूजेस केमिकल फर्टिलाइजर, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। देन बेसिकली केमिकल से क्या होता है, बेसिकली फर्टिलिटी जो होती है वो कम होती है, प्लस ये केमिकल्स यूज करना अच्छा नहीं, इससे जो क्वालिटी मिलती है जो ग्रेन्स की, उस पे भी एक असर रहता है, उससे हमको अच्छी चीजें नहीं मिलती। जो नेचुरल चीज होती है, जो नेचर है, जो सॉइल नेचुरली प्रोड्यूस करती है, उसकी बात अलग होती है, हम उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो वो जो चीज़ है वो अलग होती है, और ऑन द अदर साइड दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। तो ये जो चीज़ें वो हार्म करती हैं। देन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये भी इतना ज़्यादा छिड़का जाता है फसलों पे, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के ऊपर, कि उसकी वजह से भी इम्पैक्ट होता है नेचर के ऊपर, क्योंकि पेस्टिसाइड भी ये सब हवा में जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स वगैरह, और ये सब एनवायरनमेंट को पूरी तरह से खराब करते हैं। देन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिस तरह से तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन सब हो रहा है, और स्मोक ये सब निकलती है इंडस्ट्री से, विच इज अ सीरियस पॉल्यूटेंट, जो एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा करती है। न म्युनिसिपलिटी ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो इन द बिगनिंग इतना ज्यादा नहीं होता था ट्रांसपोर्ट का यूज, बट इन टूडेज टाइम ऑल द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर देयर, मेनी कंपनीज आर यूजिंग इट, पीपल्स आर यूजिंग देयर ओन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों होता है, एंड पीपल्स आर यूजिंग लेस साइकिल्स नाउअडेज, दे आर यूजिंग मोर मोटरसाइकिल्स नाउ। द सेवन, disregard of the civic norms. Now, general public in India tends to disregard the civic norms. Often the road are pitted and horns or loudspeaker are indiscriminately used. अब जो civic norms है उसको हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। आज भी आप देखोगे सड़कों पे कई लोग हॉर्न्स और लाउडस्पीकर का यूज करते रहते हैं, और इससे नॉइज पॉल्यूशन होता रहता है। Still, overthink this, all these things are overlooked. Now, briefly, environmental protection is a consequence of rapid urbanization and industrialization. Besides man disregard to use the civil norms, it is culminating into global crisis and needs general redressal to the national and international levels. अब इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल्स जब सारी कंट्रीज की समिट होती है, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को बोला जाता है कि कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है इन ऑर्डर टू सेव द एनवायरनमेंट। तो इसको भी एक पार्ट रखते हैं आजकल, जो भी 5 ईयर प्लान बनते हैं तो उसमें इसके ऊपर भी कुछ खर्चा करना होता है इन नेचर को सेव करने के लिए। नाउ दे आर स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स इट। नाउ ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या होता है, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस सिलेबस, बट स्टिल ग्लोबल वार्मिंग, ये जो जितना भी हम हीटअप हो रहा है, ये जो इंक्रीज हो रहा है वाटर लेवल जो ओशन का रहता है, बेसिकली ये जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ये इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है।
तो इससे वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो काफ़ी सरफेस जो रहती है लैंड सरफेस वो कम हो जाएगी क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ थिंग। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है बेसिकली, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये जो ओजोन लेयर है जो कि हमको सन की हार्मफुल किरणों से बचाती है, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर इम्पैक्ट होता है इस पे, हम यूज़ करते हैं पोल्यूट करते हैं, तो इसमें एक होल हो जाता है और फिर यहाँ से सनलाइट जब आएगी तो वो आपको बचा नहीं पाएगी हार्मफुल रेज से। बेसिकली जब ये लॉकडाउन हुआ कोरोना में, तो ये जो गैप है, जो ये ओजोन डिप्लीशन है, तेजी से इसने रिकवर किया और इसको होल को कम कर दिया। मतलब द नेचर कैन रिपेयर इटसेल्फ, वो नेचर जो है खुद को रिपेयर कर सकता है, बट उसको इतना समय देना चाहिए। सो इन लॉकडाउन इट हैपेंड। नाउ द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। अब एनवायरनमेंट का स्टेट कैसा है इंडिया के अंदर? सो बेसिकली इन इंडिया हैबिटेट नियरली 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग जस्ट 22.5% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया। नाउ हियर, अब यहाँ पर क्या होता है, इंडिया के अंदर जो गरीबी है वो तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ज़्यादा हैं, प्लस यहाँ पे जो जोग्राफिकल एरिया वो तो हमारे पास कम है, प्लस 18% आबादी बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरल एंडोमेंट इज गेटिंग एक्सक्लूसिव एक्सप्लॉइटेड एक्सीडिंग द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन। तो हम लोग उसको नेचर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और रीजनरेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। नाउ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन वेस्ट आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये जो वेस्ट होता है, कंजम्पशन वेस्ट, हम इसको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। अब इसकी वजह से एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ी से अगर हम वेस्ट को फेंकेंगे तो नेचर उसको कैसे ठीक कर पाएगा? इट टेक सम टाइम, लाइक इन लॉकडाउन ऑफ ऑल दिस मंथ हमने देखा नेचर ने खुद को ठीक लग गया, तो उसको एटलीस्ट नेचर को आप कम से कम 6 से 8 महीने दे सकते हैं, 6 to 8 month इन विच द नेचर कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ। बट वो जो चीज़ें लाइक ट्रीज को कट कर देना, उसको तो सालों लगेंगे ना ठीक होने में। तो वो चीज़ को हमको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ एयर पॉल्यूशन। सो इन स्टेट ऑफ इंडिया ऑल दिस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि बहुत तेज़ी से कंजम्पशन वेस्ट हम फेंक रहे हैं। फिर यहाँ पर जो आपने बात की थी नेचुरल एंडोमेंट, जो जो एक संपदा है हमारी, उसको हम बिल्कुल रीजनरेशन से भी रीजनरेट होने के पहले भी हम उसको खराब कर रहे हैं। देन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन पिकिंग अप टू अलार्मिंग लिमिट्स। अब दिल्ली की अगर हालत देखें तो एयर पोल्यूशन ऐसा है कि वहाँ स्मॉग बन जाता है, और वहाँ पे इस तरह का पोल्यूशन है कि लोगों को अब मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया है वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है, ये दिखता है कि इंडिया में हालत बहुत खराब है। नाउ डायकोटोमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। नाउ एनवायरमेंटल degradation in India points to the paradox situation of the country. It occurring and expanding owing to the staggering poverty as well as rapid growth of production activity. Now, hard facts are, now because in India all this degradation is simply happening because of poverty and growth of production activity, industrialization. Now, poverty is the principal cause of environmental degradation. गरीबी सबसे पहले ये इसका कारण है डिग्रेडेशन का, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ट्रीज को जो कट कर दिया जाता है, तो ट्री फेलिंग की हो रही, ऑलमोस्ट एन इकोनॉमिक कंपल्शन फॉर मीनिंग मिलियन ऑफ पीपल who are poor in the rural area, but it leads to deforestation. अब उनको तो चाहिए, पेड़ कटेंगे तो ही उनके घर बनेंगे, चूल्हा जलेगा, तो because of that poverty is also responsible for degradation. Now expanding production activity is a principal cause of environmental degradation in the urban areas. सो इन द अर्बन एरियाज, जो शहर वाले एरियाज है, वहाँ पर डिग्रेडेशन ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्मोक वहाँ पर आती है, पॉल्यूट करती है एनवायरनमेंट को, वाटर पॉल्यूट होता है, एक्सपेंशन ऑफ व्हीकल ट्रैफिक vehicular traffic. Okay, it is related to traffic problem due to vehicles. In the wake of expanding production activity is generating noise pollution besides contributing to air pollution and global warming. So यहाँ पर global warming होती है, noise pollution होता है, basically all this is traffic का जो problem है, इससे noise pollution होता है, तो ये एक तरह से environment को पूरा degrade करती है। Now here after this point, the dichotomy of the environmental degradation, तो basically गरीबी, एक तो poverty, and the other reason is द मोर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। नाउ हाउ टू सेव एनवायरनमेंट, किस तरह से एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं? तो कुछ सिंपल मेजर्स हैं इसके। सोशल अवेयरनेस, लोगों को जा जाके जागरूक कराएं, सोशल अवेयरनेस लाएं कि पॉल्यूशन के बारे में क्यों होता है, किस तरह से आप उससे लड़ सकते हैं, सब सिखाएं। द सेकंड इज पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो लेस नीड्स होगी चीज़ों की, उससे भी एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। थर्ड इज एनफोर्समेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कन्वर्जेशन एक्ट, कोई कानून बना दिया जाए जिससे हम इसको नेचर को बचा सकते हैं। तो इट इज़ ऑब्जेक्टिव टू चेक द डेटोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, तो इस तरह से कोई कानून बनाया जाएगा जिससे आप उसको बचा सकते हैं।
देन अफॉरेस्टेशन कैंपेन होना चाहिए जिसमें आप पेड़ों को वापस लगा सकते हैं, जिस तरह से काटे हैं तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो एनवायरनमेंट को। देन फिफ्थ इज कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। तो एग्रीकल्चर पॉल्यूशन जो होता है ये क्या होता है, इट एसेंशियल फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दैट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर मैनेज एंड कंट्रोल। मतलब जितना भी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से पॉल्यूशन हो उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। To avoid this agricultural pollution, use of pesticide and chemical should be restricted. अगर पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है। बेसिकली हम ये सजेशन जरूर दे सकते हैं कि इनको यूज नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अगर नहीं करेंगे तो फूड क्रॉप्स किसानों को नुकसान हो जाएगा। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। द वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए। तो वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, रिवर्स, ये जो रिवर वाटर्स रहते हैं बेसिकली शुड बी केप्ट क्लीन एंड प्रोविजन शुड बी मेड टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर ये सब साफ रहेंगे तो हमको साफ पानी मिलेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो बेसिकली आगे इन फ्यूचर में क्या होगा, हमको खराब पानी ही मिलेगा। तो वाटर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नाउ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है लाइक केमिकल प्लांट्स वगैरह से, तो ये जो चीज़ों का इनका मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो इट शुड बी ट्रीटेड केमिकली, रूरल गार्बेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। तो अगर रूरल गार्बेज है, जो रूरल एरियाज में जो गार्बेज निकलता है उसको कंपोस्ट में यानी कि मैन्योर में, जो कि वापस खाद के तौर पे आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। और कंपनी में जो निकलता है वेस्ट, उसके लिए कंपनी को ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे वो कंपनी के अंदर एक सेपरेट प्लांट बना दे जहाँ पर उस तरह के वेस्टेज को और डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसका इफेक्ट कम करने के लिए। नाउ एट्थ इज इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग। Now, houses should be neat and clean. Slum areas should be replaced by airy and well-lighted dwelling house. Let us not offer others the opportunity call us the slum dogs. अब हाउसिंग फैसिलिटी मतलब सैनिटाइजेशन वगैरह इंप्रूव करना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए नेचर को, ताकि गंदगी और नालों में जाए। बिकॉज ये स्लम एरिया से भी जो गंदगी वो बेसिकली कहाँ जाती है, समुद्र में जाती है, गोस टू द ओशन। तो वो भी पॉल्यूशन करता है कहीं ना कहीं, वाटर पॉल्यूशन उससे भी होता है। तो उसको साफ सफाई रखना और एक ड्वेलिंग हाउसेस क्रिएट करना, बट इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा उसमें भी उसको ठीक करने में, तो दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ चैलेंज। एंड बेसिकली हियर दे आर मेंशनिंग कि स्लम डॉग नहीं बोलना किसी को, तो स्लम डॉग्स नहीं बोलते, बेसिकली गरीब है, दैट्स व्हाई दे आर इन सच काइंड ऑफ कंडीशन। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ एफर्ट्स निकालने चाहिए। ओके, so these are the point. Now what is sustainable development? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह से हो कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले लोगों को, लाइक बिटवीन बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। आज हम जी रहे हैं, वी आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, सस्टेनेबल है। और आगे की जो लाइफ है, जो हम फैसिलिटी ले रहे हैं लाइक पेट्रोल, ऑल दिस एयर, सनलाइट, वाटर जो भी हम ले रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन को भी वो मिले, तो वो भी लोग यूज कर पाए। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो चाहिए बट सस्टेनेबल चाहिए, कि फ्यूचर जनरेशन भी इन नेचर रिसोर्सेस को यूज कर पाए। So without threatening natural environment and environment, the most widely recognized definition of sustainable development as phrased. So sustainable development क्या है, is a development that meets the need of the present generation without impairing the reduction in the ability of future generation to meet their needs. As I told you, future generation भी उसको use कर पाए natural resources को, जैसे आप कर रहे हैं। So in the recent past, process of economic growth was viewed as a complete disregard to the natural endowment and environment notably। तो पास्ट में तो बहुत डिस्ट्रॉय किया हमने एनवायरनमेंट को, अब आने वाले टाइम में हम थोड़ा अच्छा कर लें, ये चीज़ की जा सकती है। तो डाइवर्स क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड विल हैव लेड टू द फॉल इन अ सॉइल फर्टिलिटी। सो बेसिकली अगर क्रॉप्स को अगर अलग अलग तरीके से ग्रो किया जाए, डाइवर्स क्रॉप को ग्रो किया जाए लैंड के ऊपर, तो उससे क्या होगा, ये जो सॉइल की फर्टिलिटी बेसिकली वो बनी रहती है। सो बेसिकली इसको ठीक करा जा सकता है। सो हियर वी कैन सी दैट अगर क्रॉप्स बहुत सारी यूज की जा रही हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। वैसे अगर अगर ऐसा किया जाए कि लैंड के ऊपर कुछ वक्त तक हम किसी क्रॉप को नहीं उगाएं तो वो अपनी रिप्लेनिश करती है फर्टिलिटी। पर वहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि अगर पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती रही तो क्या आप ऐसा करोगे, क्या आप उस लैंड को खाली छोड़ दोगे, क्योंकि हमको और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो हम लैंड को खाली कैसे छोड़ सकते हैं। तो ऑल दिस प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज देयर। तो सॉइल फर्टिलिटी कैसी रहती है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाओगे तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी नुकसान करेगी, लॉस करेगी। पास्ट में यही होता है। देन एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल has led to the depletion of their stock। अब इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है कोयले का, आयरन का, तो इससे क्या हो रहा है, उसका जो स्टॉक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, वो कम होते जा रहे हैं। तो स्मोक एंड अदर इंजूरियस emissions फ्रॉम द फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैव लेड टू द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इतना ज़्यादा इमल्शन हो रहा है फैक्ट्री से, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से, तो उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। नाउ
briefly, the competitive process of growth and development has led to the environmental degradation. तो क्या हम बोल सकते हैं कि environmental का degradation हुआ है because of this all this growth and development. जितना growth and development होगा उतना हमारा environment भी खराब होगा. Now it is only recently that the environmental degradation and environmental pollution have been recognized as an emerging challenge to the quality of the life of the present and the future generation. So the concept of sustainable development is now being understood and widely propagated. What the planners and politicians now seeking is not the merely growth, but the growth that sustains the quality of life and over the much longer time periods of time. Now this requires rational utilization of the resources rather than the fuller utilization of resources. तो अब हमको यूज कैसे करना है रिसोर्सेज को? बेसिकली हमको एक रैशनल वे में यूज करना है उसको, सही तरीके से यूज करना है उसको. ऐसे बिल्कुल आँख मूंद कर, बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल उसको एक्सप्लॉइट कर दें या बहुत हार्श यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. तो ये जो चीज़ है अब ये रेस होने लग गई, ये पॉलिटिशियंस लोग अब इसको प्लानर्स लोग ध्यान में रखने लग गए कि अब सिर्फ ग्रोथ नहीं, अब हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अच्छा करना है, इसमें भी ज़रूरी है और उसका रैशनल यूज़ करना पड़ेगा. तो सस्टेनेबल जो आप बात करते हो डेवलपमेंट की, तो रैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है. ये हमको यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है. ठीक है. और प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस को हम ये लोग अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे अगर इस तरह से चलते हैं आगे फ्यूचर तो. Now, what are the features of sustainable development? तो क्या है features के? Substantial rise in per capita income and economic welfare. So there should be a sustainable rise in the real per capita income and economic welfare over the time. तो per capita income भी बढ़नी चाहिए और welfare भी होना चाहिए, लोगों की भलाई भी होनी चाहिए. मतलब कि environment को कम नुकसान पहुंचाओगे तो लोगों का भलाई ही होगा, welfare होगा. देन सेकंड, रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. रैशनल मतलब समझदारी से आपको यूज करना है अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज का, लाइक वाटर, वाटर हो गया, वुड हो गया, ये जो फॉरेस्ट हो गया इनका. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन दैट नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल. ऐसा नहीं कह रहे कि रिसोर्सेज को यूज ही नहीं करना है, यूज करो बट रैशनल यूज करो. ओके, समझदारी से. और उसको बिल्कुल हमको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, इसको एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है. एबिलिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल दैट, नॉट टू बी इम्पैक्ट. सो नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेसेस एट द पॉइंट, किस पे जोर देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड इज नॉट इम्पैक्ट इन द वेक ऑफ कॉम्पिटिटिव ग्रोथ प्रोसेस. मतलब हम बोलेंगे कि हम ग्रोथ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी फ्यूचर में. लाइक अगर ऑयल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, तो उसको काफी साल लगते हैं. तो अगर हम उसको इस तरह से यूज करते हैं कि उनको खत्म ही हो जाए पेट्रोल वगैरह, तो ये चीज उनके लिए गलत हो जाएगा. So they will not be in a condition to use all this kind of coal, petrol, and all this kind of things. So it would only be at the cost of lesser resource endowment for the future generation. Such a development process is not sustainable over a long period of time. तो अगर इसी तरह से हम चलते रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत ही कम मिलेगा. तो यहाँ पर हमको उनके लिए भी कुछ छोड़ना है. नो चेक ऑफ पॉल्यूशन. चेक ऑन पॉल्यूशन मतलब कि प्रदूषण है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये भी एक अच्छा फीचर है. इट डिस्कार्ड्स द विच इंड्यूसेस द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज टू बी व्यूड एज एन एलिमेंट ऑफ द सोशल कॉस्ट. तो अब ये जो एनवायरमेंटल का जो पॉल्यूशन, जो पॉल्यूट हो रहा है एनवायरमेंट, उसका एक सोशल कॉस्ट की तरह देखा जाता है कि जो भी पॉल्यूशन करती है इंडस्ट्रीज वगैरह, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, सो ऑल बिकॉज ऑफ दैट द लाइफ ऑफ द पीपल आर बीन इम्पैक्टेड. लोगों की लाइफ खत्म हो रही है और उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बचेगा. हो सकता है जब वो नए जनरेशन आएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो कंट्री है या फिर वर्ल्ड है पूरा इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है कि वहाँ पे सांस लेने के लिए उनको 1-2 साल के अंदर ही, मतलब जो बच्चे हैं वो भी मास्क लगा लगा के घूम रहे 1-2 साल के. तो ऐसी कंडीशन नहीं करनी उनके लिए, तो पॉल्यूशन पे चेक करना ज़रूरी है. तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो ये एकदम से डिस्कार्ड कर देता है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है, जो कि ग्रोथ के लिए हो रही है, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तेजी से, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कैसे भी करके कंट्रोल करने की बात करते हैं यहाँ पर. तो उससे सोशल कॉस्ट है ना कि सोशल वेलफेयर जो है वो बढ़ेगा. और सोशल कॉस्ट मतलब सोसाइटी को इसका ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा. नाउ सेवंथ इज स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ना ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी रखोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए. तो हो सकता है हम क्या कर सकते हैं, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लाएं. जैसे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम लग रहे हैं और आउटपुट हमारा अच्छा खासा है. इट मीन आउटपुट इज मैक्सिमाइज, दिस इज मॉडरेट द स्ट्रेस ऑन द रिसोर्स एंडोमेंट. तो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जिससे कि बहुत ही इनपुट हम अच्छे तरीके से यूज करें और वेस्टेज कम से कम हो. द सेकंड इज यूज ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी. नो एलपीजी, सीएनजी आर क्लीनर फ्यूल देन
फ्यूल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब एलपीजी जो होता है, सीएनजी जो रहती है, गैस होती है, ये क्लीनर फ्यूल रहते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहते हैं, मतलब कि एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाते हैं। द यूज ऑफ दिस फ्यूल्स मे बी एनकरेज इन द प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल और डीजल की जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ ये क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, विच एडिस टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कि काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है बेसिकली। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं ना कहीं डिप्लीशन करता है ओजोन लेयर में भी, तो इसको बचाया जा सकता है अगर हम कोशिश करें एलपीजी सिलेंडर लगाने कारों में। तो ये चीजें करी जा सकती हैं, एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। देन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, मतलब हम डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट भी जरूरी है, क्योंकि स्टेट ऑफ प्लानिंग जब भी आप प्लानिंग करेंगे, इट मस्ट बी हायर प्रायोरिटी ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। और हम कर भी रूरल एरिया को डेवलप करने की काफी बात की थी हमने पिछले चैप्टर में। तो इससे क्या होगा, दिस विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा। इससे क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे लोग, माइग्रेट नहीं करेंगे अर्बन एरियाज में। और इसके बाद जैसे क्या होगा, इफ रूरल अर्बन माइग्रेशन चेक, ट्रांसपोर्ट विल नीड टू बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो जो ट्रांसपोर्टेशन जो आ रहा है, जो कि जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। नाउ दिस विल रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्बन एरियाज। अकॉर्डिंगली वी कैन एक्सपेक्ट अ चेक ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को, कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में लाइक जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट जो जितना ज़्यादा ये लोग माइग्रेट करेंगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो कम लोग माइग्रेट करेंगे तो कम होगा। नाउ कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो नेचुरल जो है हमको मिलता है सोलर एनर्जी एंड ऑल, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंडिया एंडोर्ड विद अबंडेंस सनलाइट, इंडिया में सनलाइट बहुत है, हम ऑलरेडी टोरिड जोन में आते हैं जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट मिलती है हमको। तो ये एनर्जी का बहुत बढ़िया सोर्स है। सनलाइट इज द बोथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज वेल एज नॉन एग्जॉस्टेबल एनर्जी, कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है, ये चलती रहेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी नो लॉन्गर अ डिस्टेंट ड्रीम। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू सोलर पैनल्स। ये जो पिक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, सोलर पैनल्स लगे हैं बेसिकली। तो सोलर पैनल्स एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ अब टेक्नोलॉजी कई जगह यूज होने लग गई है। Now, solar energy and its conversion into electricity is an effective answer, not only the problems of economic growth but also the problem of sustainable development. तो सोलर एनर्जी को ज़्यादा यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कोल एंड अदर थिंग्स। कोयले को यूज कम करके हम इनको यूज कर सकते हैं। नाउ शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि इस बार इन्होंने सिलेबस में कट कर दिया है, उसकी बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि नेचुरल सोर्सेज यूज करनी है, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हैज रेज द क्रॉप। क्योंकि होता क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात छोड़ के अगर हम बात करें नॉर्मल फार्मिंग एक्टिविटी की, तो क्या होता है, ये इन सब के यूज से क्या होता है, क्रॉप्स तो बहुत ज्यादा यूज उगती है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट इट हैज डैमेज द लोअर द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, implying the loss of production capacity for the future generation. It has a time which we switch to organic farming, focuses on the soil हेल्थ रादर देन द प्लांट हेल्थ। अब प्लांट हेल्थ को छोड़ के हमको क्या सॉइल की हेल्थ के बारे में सोचना ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आजकल बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में आ गए जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं उसका यूज़। उसकी वजह से क्या होगा, वो थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, कॉस्ट पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते, बट उसकी वजह से क्या होगा, एटलीस्ट हम स्विच कर जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी खाने की भी, और इससे एनवायरनमेंट भी कम पॉल्यूट होगा। ना मैनेज द वेस्ट, मतलब मैनेज करना है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट रहते हैं, हाउस होल्ड जो गार्बेज करता है फेंकता है, तो रिवर स्ट्रीम में जाता है, पोल्यूशन होता है, तो उसका मैनेज करना पड़ेगा। कंपनियां जो रहती है इंडस्ट्रियल वेस्ट करती है, उनको सेपरेट प्लांट लगा के वेस्ट को और ज़्यादा डिकम्पोज करना चाहिए और उसको ख़त्म करना चाहिए। उसको कोशिश करना चाहिए उसको डिफ्रेगमेंटेशन, मतलब उसको इस तरह से बर्न करते हैं एक परमानेंट टेम्परेचर में। कुछ इंडस्ट्रीज में है ये फैसिलिटी, और वो लोग उसको इस तरह से बर्न करते हैं, और उसका जो जो पार्ट रहता है, जो वेस्टेज है, उसको जलाकर किसी तरह कम किया जाता है। तो वो वेस्ट जो होता है वो एनवायरनमेंट को बहुत कम तरीके से अफेक्ट करता है। तो इस तरह की फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज में लगाई जानी चाहिए। व्हेन इट विल बी इन मोर इंडस्ट्री, दस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन विल बी lesser. Now, household waste can be recycled in the compost and use of manure for organic farming. अब ये जो हाउस होल्ड वेस्ट रहता है, लाइक ह्यूमन एक्सक्रीटर रहती है, तो इससे बेसिकली हम खाद बना सकते हैं विच वी कैन यूज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। So stringent laws and disposable of the chemical effluent. Now, India is a land where where the laws lack enforcement। या कानून तो बसते हैं इंडिया में, बाकी इनका जो यूज है वो इतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं होता है। सो केमिकल एफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इनवेरेबली ड्रिवन इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। इनको कहाँ बहा दिया जाता है, केमिकल एफ्लुएंट्स को बेसिकली रिवर में बहा दिया जाता है, स्ट्रीम्स में बहा दिया जाता है, और वो पोल्यूट करता है वाटर को।
जो भी एक्वेटिक लाइफ है तो वो उसकी वजह से अफेक्ट होती है। सच अ सीरियस वायलेशन ऑफ द लॉ मस्ट बी चेक्ड बाय द ग्रोथ एंड इन केस ऑफ द ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट आर टू गो टुगेदर। तो ये जो चेक है, जो लॉज बनते हैं उसको बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए लोगों के ऊपर, ताकि वो चीज़ कंट्रोल हो सके एनवायरनमेंट में। नाउ अवेयरनेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एसेट for intergenerational equity. The intergeneration equity means equal opportunity to grow and prosper for the present and the future generation. तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, intergeneration equity means equal opportunity for the present and future generation, मतलब आज जैसा आप यूज़ करो तो फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए। तो उसके लिए आपको नेचुरल एसेट्स को बचा के रखना पड़ेगा, तो उसको इक्विटी देनी, मतलब आप जैसा यूज़ करो फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए। सो इंडिया इज हाईली कॉन्शियस विद द intergenerational equity at the micro level, at the family level. We do our best to preserve our asset for the benefit of our future generation. तो हम इस तरह से यूज कर रहे हैं assets को, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, तो इस तरह से हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। बट दिस अवेयरनेस इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल एट द मैक्रो लेवल। जब आप घर पे अच्छा यूज करते हो सब चीजों का, तो हम मैक्रो लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसको अच्छे से नहीं कर पाते। सेल्डमली वी थिंक ऑफ कंजर्विंग और नेचुरल वेल्थ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम पूरे वर्ल्ड लेवल इकोनॉमी पे जाकर जाए या मैक्रो लेवल पे जाकर बात करें, तो हम इतना ज्यादा शायद ध्यान नहीं दे रहे। हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड कर ही जा रहे हैं, हम लोग उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। ऑफ कोर्स देयर आर एग्जांपल लाइक चिपको मूवमेंट एंड इन द नॉर्थ एंड एपिको मूवमेंट। तो ये जो चीज़ हुए थे मूवमेंट, इसमें लोगों क्या हुआ था, लोगों ने ट्रीज से खड़े हो गए थे चिपक के, और बेसिकली जो साउथ में और जो असम वगैरह में हुए थे, ये जो अटेम्प्ट था कि जो पेड़ काट दिए जाते हैं उसको बचाने के लिए किया था, गया था, लोगों ने किया था। बट सच एग्जाम्पल आर येट टू कल्मिनेट इनटू नेशनल अवेयरनेस फॉर सेव एनवायरनमेंट एंड नेचुरल सेट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। मतलब ये आपके लोगों ने इस पेड़ से चिपक के क्या किया, ट्रीज को कट नहीं करने दिया। तो ये जो चीज़ थी, ये जो एक डिवोशन दिखता है नेचर के प्रति, ये लोगों में कम है, पर कुछ लोगों ने इसको कैसा करके दिखाया। तो और इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक नाइन्थ पॉइंट है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका इस चैप्टर का पॉइंट आखिरी। सो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करने से क्या होगा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो इंस्टेड ऑफ योर ओन व्हीकल्स, आप खुद की गाड़ियां कम यूज करो, और उसकी वजह से क्या होता है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो मेट्रो सिटीज जो होती है, जो कि बड़ी बड़ी सिटीज लाइक बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कोशिश करें कि एक ही बस चल रही है, उसमें बहुत सारे जने बैठ के जा रहे हैं। तो बेसिकली इससे होगा कि अगर हर कोई जना अगर अपना व्हीकल यूज़ कर रहा है, तो बेसिकली उससे होगा क्या, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। ठीक है? तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली हमको कोशिश करना चाहिए कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें, तो उससे पॉल्यूशन कम हो सकता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सब एक तरह से पूलिंग हो जाएगी सब लोगों की, थ्रू अ बस और मे बी सम ट्रेन लाइक दैट। So this is how we can reduce this environmental problem. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स आर टू बी रैपिड एंड कंफर्टेबल एंड इकोनॉमिकल, ये सब सस्ते भी पड़ते हैं। सो मेट्रो इन दिल्ली सच एस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू द सब अर्बन एरियाज एज वेल। अब इसका एक्सटेंशन करना चाहिए मेट्रोज का, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें। सो दे दिस विल बी लाइक अ कट टू द प्राइवेट व्हीकुलर ट्रैफिक एंड इन अराउंड द मेट्रो सिटीज़। तो मेट्रो सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया है, क्योंकि वहीं पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इस तरह के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को। So this was your chapter, entire chapter. So this video was long, but still you managed to complete in this one single video. So this was a chapter 12th. So that's all. If you have any kind of doubt in this chapter, just ask me. Thank you.